When people suffer, लोगों को पता ही नहीं होता हो क्या रहा है. Right. Many times, and it could be about anything in life for that particular matter. The moment you're given some understanding about that particular topic or thing, you automatically feel much better. And that particular thing I wanted to bridge and I wanted to actually work around. So Okay. that is where the whole journey of writing started. What is exactly happening, why it is happening, and what are the things that are driving my life. But I was also interested and started to get more into detail about how life also operates, how our Right. brain also operates, how human behavior also operates. Trying to understand about science and aerospace and engineering and various other things started transforming into the other part of life as well. So how did this, life coaching works? Like, what is it that you dig deep into when you are, let's say, helping an individual with? So I work specifically on emotional intelligence. प्रॉब्लम क्या हो गई, मैंने जो इंटरनल इश्यूज थे जिस कारण से मुझे एंजाइटी हो रही थी मैंने सॉल्व भी नहीं किया और मैं रिलेशनशिप में चला गया. हुआ क्या इवेंचुअली? How can one, keep a relationship healthy, long lasting? What are like key elements? One is like good communication. What other things that you think? The biggest thing that keeps a relationship lively is respect. Hi everyone, welcome to Level Up with Sahil Sachdeva. Today we have a very interesting guest on our show, Shivam. Shivam is an aerospace engineer turned author and a life coach. He has also wrote 2 self-help books like Finding the Magic in You and How to Unleash Your True Potential. So Shivam, welcome to the show. Thank you so much for being here. Thank you so much for having me. Great. Shivam, it has almost been, I believe, 7 years when we first met. Right. I came to you at Chandigarh University when you were serving there as a professor. So I, along with my team, came there for some help with the miniaturized satellite that Yes. we were building. I do remember that. Yes. Yeah. So almost 7 years, and then seeing you, getting changed into turning into a life coach, an author, and a father. I'm sure it has been, a lot of journey that you've been through. Right. So what was that turning point that, came into life? Like, how did this whole transition happen? Right. So you're an engineer yourself, and so I'm pretty sure that you understand how engineers are taught to kind of run after curiosity about Right. why things happen the way they do. Right. Right. So हर curiosity के aspect पे वो था मेरा भी life, as in terms of understanding what is exactly happening, why it is happening, and what are the things that are driving my life. So I was always fascinated by science and engineering as per se, but I was also interested and started to get more into detail about how life also operates, how our Right. brain also operates, how human behavior also operates. And so this basic understanding of trying to understand about science and aerospace and engineering and various other things started transforming into the other part of life as well. That Okay. is how our brain works, how our emotions work, why do our behaviors act out the way they do, why do we end up being impulsive, very impulsive at times, why are we very rational at times. And all these questions started me and pushed me towards starting to read more about it, understand more about it, and that basically started a journey point of those particular things, and eventually I'm here the way I am. That's great. And you have written 2 books, along the side. So this was back in the college itself, or when did you? Right. So the first book came out in 17. I think, yeah, pretty similar to when we met. Yeah. Yeah. So that came out the first book then. Second book also came out an year or half after that. So both of the books came near that particular point. And so the first one is How to Unleash Your True Potential. The second one is Okay. Finding the Magic in You. And both of the books surround around, again, helping people understand themselves better, understand their emotions better, understand their life better in a particular way. And the whole point and the whole gist of those particular things was about understanding that if you are able to understand your life, a lot of your problems can actually be solved. Okay. Because काफी बार हम वो चीजें देखते हैं ना, that most of the people suffer because of lack of understanding about themselves. एक बहुत ही common चीज है that when people suffer, लोगों को पता ही नहीं होता हो क्या रहा है. Right. Many of times, and it could be about anything in life for that particular matter. The moment you're given some understanding about that particular topic or thing, you automatically feel much better. And that particular thing I wanted to bridge and I wanted to actually work around. So Okay. that is where the whole journey of writing started. And again, I wrote that book not in a way to do anything. I mean, it was not in any way to actually promote Right. myself or do something Okay. about it. It was just a means of expression for me. So at that time, it was pure passion, and you were not looking to do this Nothing professionally. at all. Nothing at all. I was just Okay. I had something in my mind. I wanted to pour it out all out. That then came the book, and then that book became pretty popular, and that's how the journey started. So Okay. when the How to Unleash Your True Potential got pretty popular, that's when I started to get invites for talks and shows and workshops, and that is where the whole thing started. That okay, maybe this has something, and maybe this is pretty exciting as well, because I have always been a very
a person who likes to teach a lot. I love teaching for that particular Right. matter, and that's how I became a professor. Very as well relevant from when we came to Yes, you absolutely. for our project, Right. and you were so helpful with that. Right. I think that's what helped us, And I'm- became like the 12th best in the world for launching that That's miniaturized wonderful. satellite. That's wonderful. Yes. Yeah. So that I love teaching for that particular matter, and like I mentioned, right, that people suffer because of lack of understanding about themselves, and that is the gap I wanted to bridge. Through book, I was able to do so in a particular extent. But eventually, after that particular thing, once I realized and went to talks and events and workshops, I did realize that talking to people and actually conducting them and actually talking to them personally was actually much better than writing things down. More impactful. Right, because when you're writing things down, it will be kind of generalized. But when you're actually talking to them, it is more personal. It is more something like that. That is where the whole public workshop thing started. But then, even after that, I realized, and that's where the life coaching thing started, is when I realized that more than that as well, talking to people and having to conversate with them for a longer period of time was actually more influential for that particular thing. Okay. Because what is really happening is that let's say I go for a workshop or an event, हम बात करते हैं हम उन चीज़ों के बारे में, टॉपिक्स के बारे में, we do have certain things about it, and then eventually after the talk may be great and good, but उस particular talk के बाद I go back home, they go back home, Right. and then that is the end of it. Nobody maybe takes action. exactly, maybe they learned something from it, maybe they understood something from it, maybe they wanted to improve their life from that particular thing, but वहाँ पर gap bridge हो गया. लेकिन that's where the coaching thing started, that maybe if actually the problem has to be solved and if something has to be done from that particular angle, we need more regular things. We need to be able to be aware of what is happening and to be able to understand कि उनके दिमाग में जो doubts आ रहे, clarifications आ रहे, उनको हम discuss कर सके, work out कर सके and understand कर सके. So that is where the whole interest towards life coaching also came into the picture. Interesting. So how did this, like life coaching works? Like what is it that you dig deep into when you are, let's say, helping an individual with Right. understanding their aware, what they want to do in life or what's their why in life? So how do you go about it? Right. So I work specifically on emotional intelligence. Acha. So basically the whole agenda of life coaching is about setting goals in life. Okay, what is emotional intelligence first of all? Right. So basically emotional intelligence is about being intelligent the way you use your emotions. Okay. So normally हम emotions को बहुत ही negatively देखते हैं. That हम कहते हैं That कि you're weak. yeah, you're weak and you're impulsive and Yeah. you do not really know how to handle or navigate through that particular thing. So being emotional is being weak normally in day-to-day life. But that's the whole point about it. Emotional intelligence actually teaches you to understand कि जो भी हम feel कर रहे हैं उसका कोई purpose है. It does not come without a purpose. Even if I'm feeling sad today, कोई purpose होगा sad feel करने का. Even though that does not make any sense to you. मेरा sad feel करना आपके मुझे validation की जरूरत नहीं होनी चाहिए ideally. Right. Because I am feeling sad, and that is much more than enough proof for me to actually understand that. But that is where the problem arises. आज के डेट में फिर हमें दिखता है कि अच्छा, if I'm feeling sad about something or anxious about something, and other people are not doing that, other people are actually happy about those particular things, then maybe I'm not doing it right, and then maybe I'll force myself to also be happy on that particular thing. Okay. Right? For example, मुझे relationships anxiety हो रही है. I'm not able to build relationships, and I see other people being very happy in their relationships. तो मेरा दिमाग क्या कहेगा कि यार प्रॉब्लम मेरे में कुछ है. Right. राइट एंड मे बी शायद मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, मे बी शायद मैं ओवर ड्रामेटिक हो रहा हूँ, मे बी आई एम बीइंग टू पुशी और टाइम्स. तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं, लोग इन्जॉय कर रहे हैं रिलेशनशिप में, आई शुड ऑल्सो बी एबल टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग. तो मैं खुद को पुश करूँगा, कोई बात नहीं, अपनी प्रॉब्लम्स को रखो पीछे, रिलेशनशिप में जाओ, एक्सप्लोर करो, गो ऑन डेटिंग एप्स, डू दिस एंड डू दैट, एंड विच इज अ गुड थिंग. आइडियली इट्स इंपॉर्टेंट टू डू दोस थिंग्स एज वेल. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, मैंने जो इंटरनल इश्यूज थे जिस कारण से मुझे एंग्जाइटी हो रही थी, मैंने सॉल्व भी नहीं किया और मैं रिलेशनशिप में चला गया. हुआ क्या eventually? That those problems which were remained unsolved and unprocessed, they keep coming up again in the next relationship as well. Right. Again the same relationship will get ruined for some particular reason. And जब वो होगा तो automatically what will really happen? मेरे जो anxiety थी about relationship वो और बढ़ जाएगी. So Because you did not solve that issue in the first exactly. place. तो लोग people that's what people do, right? कि हम एक प्रॉब्लम को देखते हैं और हम इमोशंस के लेवल पे उसको जज करना चालू कर देते हैं. दैट अगर मुझे नेगेटिव फील हो रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग, सो मे बी आई शुड जस्ट इग्नोर दोज थिंग्स, आई शुड जस्ट रन अवे फ्रॉम दोज पर्टिकुलर थिंग्स. दैट्स व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस टीचेज यू, हाउ टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस बेटर, हाउ टू नो व्हाट एक्जैक्टली इट इज ट्राइंग टू टेल यू, एंड देन वर्क अराउंड दोज एरियाज. इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हम उस पर रिएक्ट करें, किसी तरीके से फाइट करें. It's always important to understand what is it trying to tell you, and then understanding हम उसके लिए क्या कर सकते हैं. That's what exactly emotional intelligence is. So what questions should one ask, when they're going through this situation? As in what sort of situation?
like whenever they are comparing to other people, like they're not happy in their relationship. So how to like navigate through this? I think the very important thing to understand is understanding your own true values and what exactly are the needs that are not getting met in the relationship. I think most people are not even aware about what their values are, what Absolutely. their needs are, what their wants are. They are just confused. Exactly. Problem है ना कि we are bombarded with so much information on day-to-day basis Right. that it's very difficult to actually think about what do you really want out of life. Right. हमें दिख रहा है इंस्टाग्राम पे कपल गोल्स, वेकेशन गोल्स, ट्रैवल गोल्स, लाइफ गोल्स, तो और दिख रहा है कि अच्छा वो लोग फ्रांस जा रहे हैं, वो लोग इटली जा रहे हैं, वो लोग यूरोप जा रहे हैं, so many things are doing in life. So maybe that's what I want as well in life. Maybe I don't want that. Internally मुझे मजा नहीं आएगा, मैं जाकर होटल में सोने वाला हूँ जाकर. हाँ. बट मेरा दिमाग कहेगा कि वो तो इटली में जाके मजे कर रहे थे, तो मुझे भी जाना चाहिए. टू बी एबल टू लिव अ गुड एंड हैप्पी लाइफ आई शुड बी एबल टू डू दैट एज वेल. तो मैं जाके जबरदस्ती वो चीज़ करने जाऊँगा, बट आई एम नॉट हैप्पी देयर ईदर. आई एम स्ट्रगलिंग एंड उसके बाद मेरे EMI भी लग गए बिकॉज मुझे खर्च करने पड़े थे वहाँ पे. Right. Even more stress. मोर स्ट्रेस ना. सो दैट्स द होल पॉइंट अबाउट इट, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा है आज के डेट पे ना थ्रू सोशल मीडिया कि हमें सोचने का समय है ही नहीं बिल्कुल. अगर सोचने का समय नहीं है तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें चाहिए क्या आइडियली. तो दैट्स द वेरी फर्स्ट पॉइंट अबाउट टेकिंग सम टाइम फॉर योर सेल्फ टू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट योर वैल्यूज आर, व्हाट योर नीड्स आर, व्हाट योर वांट्स आर. जैसे खाने के टर्म्स में होता है ना, ये एक्चुअली लोगों की भी गलती नहीं है कि लोगों को नहीं पता उन्हें क्या चाहिए, उनके वैल्यूज़ क्या, उनके नीड्स क्या है. द प्रॉब्लम कम्स राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड. जैसे बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, उस छोटे से बच्चे को अगर भूख लगती है तो बच्चा रोता है, उसे नींद आती है बच्चा रोता है, वो गिर जाता है वो बच्चा रोता है, हर सिचुएशन बच्चा रोता है, बिकॉज दैट इज द वे द चाइल्ड कम्युनिकेट्स टू यू दैट समथिंग इज रॉन्ग. उसे भी नहीं पता क्या हो रहा है, द चाइल्ड इज कम्युनिकेटिंग टू यू थ्रू दैट पर्टिकुलर थिंग. बट इवेंचुअली वी टीच द चाइल्ड, कैसे तुम्हें भूख लगी तो बताओ भूख लगी है, प्यास लगी तो बताओ प्यास लगी है, गुस्सा आ रहा है तो बताओ गुस्सा आ रहा है, वॉट एवर. सो वी टीच द चाइल्ड अबाउट देयर फिजिकल नीड्स, ये तुम्हारी फिजिकल नीड्स है, तुम्हें खाना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो बताओ खाना है, दीज आर योर फिजिकल नीड्स, सोना है, पीना है, वॉट एवर दैट पर्टिकुलर थिंग इज. तो हम बच्चों को राइट फ्रॉम द डे वन टीच व्हाट एग्जैक्टली आर योर फिजिकल नीड्स एंड हाउ टू कम्युनिकेट अबाउट दोज पर्टिकुलर नीड्स. Right. बट आपको कभी याद है कि आपको इमोशनल नीड्स के बारे में बताया गया हो कभी किसी I was about to ask that. No, I don't think so. Right. I think this we just navigate through and then figure it out. एग्जैक्टली वी फिगर इट आउट. Yeah. हमें पता ही नहीं क्या कर इमोशनल्स होते क्या है. डू आई वांट लव, डू आई वांट अटेंशन, डू आई वांट केयर, आई डोंट नो. मतलब पता नहीं चाहिए या नहीं चाहिए. अगर मैं काफ़ी बार ये भी सोचूंगा कि शायद मुझे अटेंशन चाहिए तो मैं नीडी तो नहीं हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा, क्या मैं बहुत डिमांडिंग तो नहीं हो रहा हूँ. आई डो नॉट नो व्हाट डू आई रियली नीड एंड वांट, राइट. तो प्रॉब्लम वहीं पर है दैट वी डू नॉट रियली नो कि हमारी इमोशनल नीड्स क्या है, बिकॉज एज मच एज फिजिकल नीड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी एंड so much is emotional needs important for your mind. So it's very much important for you to actually understand and navigate through those emotional needs कि मेरी emotional needs है क्या. And जब आप वो समझना स्टार्ट करते हो then you find ways to fulfill those emotional needs for you. Because आपको पता ही नहीं है कि मुझे भूख लग रही है तो आप खाना ढूंढोगे कैसे. हम यही कर रहे हैं ना, हमें लग रहा है कुछ कमी है बॉडी में, लाइफ में बहुत, लाइफ फील्स वेरी बोरिंग, लाइफ फील्स वेरी मोनोटोनस, लाइफ इज़ वेरी ड्राई एंड वेरी सैड. बट पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है, व्हाट इज मिसिंग. बिकॉज पैसे अच्छे हैं मेरे पास, गाड़ी अच्छी है मेरे पास, घर अच्छा है, फैमिली मेरे पास, पार्टनर है मेरे पास, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग पता ही नहीं. तो ये वाइब पता कैसे लगता है, like is this need coming from like a comparison, or is this something that I really want to do, या ये मेरा purpose है. How does that one person figure out like what is their why, and if that why is like justifiable, like that is something they internally need, और या फिर वो एक बाहरली materialistics like just comparison के कारण वो आ रहा है. राइट. सी हर इंसान की 9 बेसिक इमोशनल नीड्स होते हैं. Okay. राइट. एंड हर इंसान उन नीड्स के और नेविगेट करता रहता है. उस अकॉर्डिंगली वैल्यूज बनते हैं हमारे कि हम अपनी लाइफ में क्या सीख करना चाहते हैं, क्या नहीं सीख करना चाहते हैं. एंड दैट इज वेयर द वाई कम्स फ्रॉम. Okay. फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ करना है लाइफ में, राइट. फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टू टीच. मुझे क्यों पढ़ाना है, वाई डू आई लाइक टीचिंग. आई मीन इट इज अ वेरी रैंडम थिंग टू से, आई लाइक टीचिंग. क्यों पढ़ाना है, मतलब क्या मिल रहा है तुम्हें. इवन दो यू नो दैट टीचिंग इज नॉट अ वेरी lucrative or very financially sound profession to be able for that particular thing, but क्यों अच्छा लग रहा है, why do you like teaching? Impact maybe. Exactly. So I'm looking for impact. I'm looking for change. I'm looking for some sort of empathy and kindness that maybe I did not get as a child growing up, but I now I want to make sure that others do not have that particular same thing. तो वो जो पॉइंट मुझे दिखा था बचपन में कि यार ये चीज़ कमी रह गई मेरी लाइफ में, आई एम काइंड ऑफ लुकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग इन माई लाइफ, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड दैट पर्टिकुलर थिंग अप. तो बेसिकली हो कह रहा है मेरी वैल्यूज़ कहाँ से बन रही है, उन पर्टिकुलर चीज़ों से. तो आई लाइक टीचिंग बिकॉज मुझे ये 5-6 चीज़ें उनसे मिल रही है. अच्छा. अब सेम चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ कि यू गो एंड टीच,
इट मे नॉट मेक एनी सेंस टू यू, Right. बिकॉज आपकी वैल्यू कुछ और होंगी, Right. आपको कुछ और चीज़ें ड्राइव कर रही होगी. सो नाउ इफ यू गो बिकम अ टीचर, इट विल गो अगेंस्ट यू. ना आपको मजा आएगा, ना पैसे होंगे, ना आप स्ट्रेस भी होगा साथ में कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ. Right. वही अगर मैं इसमें कम पैसे भी कमा पाता हूँ, You're happy. at least I'm happy and satisfied. settled. And then I can find ways to grow in this particular profession as well, rather than just being stuck. Because अगर आपसे पूछा जाए कि what to do in teaching, आप तो वही करोगे जो नॉर्मल लोग करेंगे. अच्छा ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो. But if I know that if it's coming internally from me, I can be creative in this particular thing now. Right. इसको कैसे कहाँ लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, and then I'll automatically grow because जहाँ creativity आ गई, you'll automatically grow, right? So that's the whole point about it. You understand क्या होता है, क्यों होता है, and to be able to work on those particular areas. I'm sure when you are working with your clients, people that you're giving coaching to, there must be a lot of challenges that you have to go through. Yeah. Because people have their what do we call it, inner child issues or any other disorders that they have. So how do you just go about helping them find their why? Right. So again, सारा जो point आता है समझने का, it's all the whole point of emotional intelligence coaching starts with emotional awareness. Okay. The first goal is to be able to understand and observe and be aware of what you're feeling. And सुनने में बहुत basic चीज़ लग रही है. Right. But सबसे बड़ा issue यहीं पर है. Majority of the people do not know what they are feeling and why they are feeling. जिस अगर आपसे मैं पूछूं कि what were you feeling today, कैसा था दिन आपका, what were you feeling, how was your day, majority of us won't be able to answer that particular thing. क्या फील किया आपने, पता नहीं, ठीक था, बिजी था, आज बिजी डे था, Yeah. क्या फील हुआ था, पता नहीं, राइट? बिकॉज हम भाग रहे हैं उन चीज़ों से समवेयर, या हमें आदत नहीं रही उन चीज़ों को लेबल करने का, नेम करने का, ऑब्जर्व करने का. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज इमोशनल अवेयरनेस, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू फील, व्हाई डू यू फील. द मोमेंट आई सी अ चेंज इन माई बिहेवियर, इन माई इमोशंस, दैट्स व्हेन आई रियलाइज ओके कुछ तो हुआ मेरे लाइफ में, मतलब मुझे बुरा लग रहा है अचानक से, कुछ हुआ है. फिर याद आएगा अच्छा कुछ देर पहले मेरी कुछ नीड्स थी, एक्सपेक्टेशंस थी फ्रॉम माई पार्टनर विच कुड नॉट गेट मेट. तो सडनली मुझे अंदर से गुस्सा आ रहा है अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग दैट माई पार्टनर डिड, लेकिन मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया उस चीज़ को. एंड दैट इज वो सडनली मेरा मूड शिफ्ट हो गया, मुझे गुस्सा आ रहा है अंदर ही अंदर, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है जो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज बहुत छोटी सी चीज़ है मेरे लिए, पेटी सी इशू है वो, मुझे बोल भी नहीं पा रहा हूँ, बट अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है. देन द मोमेंट यू ऑब्जर्व कि ओके इस कारण से गुस्सा आ रहा है, I find a reason to that particular thing. I got the why for that particular emotion. And then I have that particular choice internally. Should I be acting on this particular thing or should I not? तो मे बी अगर हम जब उसको थोड़ा समझना चालू करेंगे, दिखेगा कि अच्छा आई एम फीलिंग सैड और आई एम फीलिंग एंग्री फॉर व्हाट माई पार्टनर डिड, बट देन द मोमेंट आई अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, कि शायद वो इस तरीके से एक्ट कर रहे थे बिकॉज ऑफ देयर पॉइंट ऑफ व्यू, देयर अंडरस्टैंडिंग, देयर ओपिनियंस, तो दिखेगा शायद ठीक है, मैंने इसमें हर चीज़ को एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, तो इट्स ओके, देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेंटिंग आउट दैट पर्टिकुलर एंगर, फिर अंदर ही अंदर भी डिजॉल्व हो जाएगा. बट नॉर्मली हम ये नहीं करते. नॉर्मली क्या होता है, किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, मेरे पार्टनर ने कुछ, मुझे किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, एंड वो चीज़ अंदर बैठ गई, मैंने कुछ नहीं, ना मैंने सोचा, ना मैंने रिएक्ट किया, मैंने कुछ बोला, एंड देन मैंने तो छोड़ दिया, जाने दिया, एंड देन आई गेट बिजी इन लाइफ. फिर कल से ऐसा कुछ होगा, कल फिर से कुछ छोटी सी बात होती है, फिर से वैसा कुछ होता है, फिर से वो अंदर अंदर गुस्सा है, फिर लगे कि वो छोटी सी बात है, क्यों गुस्सा करना, फिर अंदर पाइल अप होना चालू. How should one go about it? Should we communicate these little things that we are feeling? कैसे करना चाहिए? आइडियली दैट्स अ थिंग अबाउट इट कि हर चीज़ें अगर हम सिर्फ बात ही करने लगे प्रॉब्लम्स के बारे में कि ये प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स, द होल एक्सपीरियंस आल्सो Some people say that arguments are also healthy, that you should have arguments are in healthy. relationship. Arguments are absolutely healthy, but again किस सेंस पे, किस पॉइंट पे, किस टोन में और किस इंटेंसिटी में हो रहा है, उस पर भी डिपेंडेंट है. अब हम दिन भर आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे तो इट्स नॉट हेल्दी, आई मीन इन द सेंस दैट हमारा एक्सपीरियंस ही नेगेटिव हो गया. बट हाँ, हम बात करने के लिए रेडी, यू आर रेडी फॉर द आर्ग्यूमेंट, आई एम रेडी फॉर द आर्ग्यूमेंट, एंड वी बोथ सी दैट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एज सच, तो इट्स फाइन, वी वोंट एक्चुअली टेक इट एज अ नेगेटिव थिंग, राइट? सो दैट्स द होल पॉइंट अबाउट इट कि यस, हर चीज़ हम फील कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर पाना कि ओके दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, एंड दिस इज वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम. बट देन अंडरस्टैंडिंग किसके बारे में बात करनी ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, वो हम अंदर ही अंदर समझना चालू कर देंगे. अगर ज़रूरी हो आई विल पुट इट आउट देयर, अगर ज़रूरी नहीं हो तो आई जस्ट लेट इट गो. लेकिन प्रोसेस कर लिया. Should you talk at that very moment or maybe नहीं, टेक योर टाइम टू प्रोसेस. Take your time to process it and then maybe fix a time. फिक्स अ टाइम, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. एंड आइडियली जो एक और जो सबसे बड़ा गैप आता है रिलेशनशिप्स में, द बिगेस्ट गैप इन रिलेशनशिप्स इज द फैक्ट दैट व्हेन अ मैन एंड अ वुमन कम्स इनटू द रिलेशनशिप, they both have a very different ways of understanding and processing their emotions. Okay. For example, as a man, if you have 10 problems in life, what will you do? You'll first think about those problems. उनमें से 8 प्रॉब्लम्स आप अंदर ही अंदर सॉल्व कर चुके होगे,
कि ठीक है ये हो गया वो हो गया, कोई बात नहीं इसके बारे में, ठीक है हो गया सॉर्ट, ये हो गया सॉर्ट, ये हो गया सॉर्ट। आपको थोड़ा अलोन टाइम चाहिए होगा, मी टाइम चाहिए होगा, आप सॉर्ट कर लोगे, प्रोसेस कर लोगे। Right. बची दो चीज़ें जो डिफिकल्ट होगी, देन यू विल गो आउट एंड आस्क फॉर हेल्प. So how does a man process their emotions and process their feelings most of the times? They first internalize it, think about it, process it internally, and then talk about the remaining things which they could not process on their own. That's how a man works. It's very different from how a woman works. Okay. उनका जो बेसिक वे ऑफ मैकेनिज्म होता है टू बी एबल टू प्रोसेस देयर इमोशंस, इट इन्वॉल्व्स टॉकिंग. अगर उनकी लाइफ में 10 प्रॉब्लम्स आ चुकी है तो वो 10 के बारे में बात करना चाहेंगी. Right. To be able to process it. So that means for a woman to actually solve their issues or to process their emotions, they need to talk it out. अब यहाँ पर सबसे बड़ा गैप आता है. As a man, you're listening to women talking about the 10 issues. आपके दिमाग ने इस तरीके से सुना कि अगर वो 10 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब वो 10 के 10 चीज़ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं. बट रियलिटी में उनके लिए 10 की 10 प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं होती है. Sometimes you start defending. एग्जैक्टली, प्रॉब्लम वही होता है ना. तो हम जब किसी when a woman comes to you with 10 of their problems कि ये हो गया वो हो गया वो हो गया ये हो गया, they are not wanting a solution for those particular things. They just want to talk. They just want to process their feelings through talking. Okay. As a man, what are we listening? कि आपने मुझे एक असाइनमेंट दिया है इमोशंस को सॉल्व करने का, तो हम तुरंत ओपिनियन और एक रैशनलाइजेशन देना चालू कर देते हैं कि तुम आपने मुझे ये इश्यूज दिए और मेरा दिमाग उस तरीके से काम कर रहा है कि आई वांट logically. या वी वांट सॉल्यूशंस आउट ऑफ दोस पर्टिकुलर थिंग्स बिकॉज़ दैट्स हाउ वी वर्क. तो हमने उनको सॉल्यूशन देना चालू कर दिया, बट उनको सॉल्यूशन तो पता था पहले से. आपसे सॉल्यूशन की जरूरत नहीं थी उनको एक्चुअली में. Okay. They could have found the solution by themselves and they know the solution by themselves. But to be able to process that thing, they need to talk. But the moment I rationalize that particular thing, what I'm doing, what am I really doing? The moment I'm rationalizing those things, I'm actually invalidating their emotions as well. What am I saying then? कि तुमने ये फील किया and वो गलत फील किया because ये करना चाहिए था तुम्हें. तो हमने क्या किया? The person comes to you to be able to talk about their emotions and हमने कह दिया कि नहीं नहीं ये तो गलत है. Shut them down. Exactly. तो वहाँ पे they start defending themselves and they start feel very low again in front of you. And that is why people say, right, कि काफ़ी बार कहते हैं कि I'm just talking to you about a problem. I don't want a solution out of it. And then they stop talking to They you. stop like, talking because to you. उनको वहाँ validation नहीं मिला, awareness नहीं मिला उस particular चीज़ का. So the very most important thing is कि difference है एक man और women के बीच में. And this difference has to be understood. If you want a healthy relationship, this difference has to be understood. Not only a man should understand that, a woman should also understand that. If a man is trying to give you a solution, it doesn't necessarily mean that he doesn't want you, doesn't like you, or is trying to invalidate your emotions. It Right. also means that they're trying to imagine or think what they would be doing for themselves. जैसे वो खुद के इमोशंस को सॉल्व कर रहे हो तो वो आपकी इमोशंस सेम सॉल्व कर रहे हैं. एक्चुअली दैट मीन्स दैट केयर फॉर यू. बट गैप आ रहा है ना ऑफ व्हाट यू वांट एंड व्हाट दे आर गिविंग यू. दैट इज वेयर कम्युनिकेशन मैटर्स. दैट फॉर देम टू बी एबल टू टेल यू कि मुझे सिर्फ बात करना है, मुझे कोई सोल्यूशन ओपिनियन मत दो. एंड फॉर अ मैन टू ऑल्सो टेल कि आई एम नॉट मीनिंग टू इनवैलिडेट योर इमोशंस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रोसेस अंडरस्टैंड कि आई वांट टू हेल्प यू आउट थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स. जब ये कम्युनिकेशन का ब्रिज होगा तो ऑटोमेटिकली बोथ ऑफ देम विल नॉट सी ईच अदर एज अ थ्रेट एंड दोनों उस बारे में बात कर पाएंगे, डिस्कस कर पाएंगे उस बेटर तरीके से. वरना गैप बढ़ना चालू होता है. ही डजंट अंडरस्टैंड मी, शी डजंट अंडरस्टैंड मी, एंड देन वो गैप बढ़ता ही जाता है एंड देन रिलेशनशिप काइंड ऑफ बिकम्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. Right. So this is one thing, of course, we need to take care of when being in relationships. Like, how can one, keep a relationship healthy, long lasting? What are like key elements? One is like good communication. What other things that you think? The biggest thing that keeps a relationship lively is respect. Right. There is no other way around it. Because once you respect your partner, you understand and you try to understand them. It's as simple as that. अगर आप किसी को रिस्पेक्ट करते हो तो आप समझोगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, आप रिजेक्ट नहीं करोगे. अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो आपका दिमाग कहेगा नहीं मैं सही हूँ आप गलत हो. बट पॉइंट आ जाता है कि एक जब किसी रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट होता है, बीट फ्रॉम अ मैन साइड और अ वुमेन साइड, देयर इज नो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ सर्टेनिटी और नेसेसिटी कि वो दोनों लॉजिकल बात ही कर रहे होंगे. You can be very irrational at times and they can be very irrational at times as well. But if you respect your partner, you might understand that they are being irrational at this particular moment. But मेरे rationalize करने से वो problem solve नहीं हो रहा है. Maybe they need something else out of this particular. Maybe they need some bit of attention. Maybe they just want to hear you out. Maybe they just want to vent out as well. तो ये respect से आएगा ना element. अगर आप respect नहीं करते हो, नहीं मैं ही सही हूँ, तुम्हारा सारा पर्सपेक्टिव गलत है, तो ऑब्वियसली गैप आ जाता है. तो आई थिंक रिस्पेक्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Respecting their life choices, decisions that they have. राइट एंड आप आई थिंक उसमें भी पॉइंट है किसी इन अ रिलेशनशिप बोथ ऑफ द पार्टनर शुड बी एबल टू चैलेंज एंड क्वेश्चन देमसेल्व्स एज वेल कि मेरे कुछ डिसीजंस एंड चॉइसेस है एंड मेरे अकॉर्डिंगली वो सही है.
Right. बट इसका मतलब ये नहीं कि my partner cannot say that this is wrong. उनको लग सकता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, and they should feel comfortable to be able to talk to me, and I should also feel comfortable to be able to take it openly. ये भी गैप नहीं आना चाहिए कि मेरा डिसीजन, मेरी लाइफ को चॉइसेस ये है, मैं इस तरीके से जिंदगी को देखता हूँ, लेकिन तुम मुझसे चैलेंज नहीं कर सकते हो. Right. तो ये रिस्पेक्ट में ये भी एलिमेंट आता है कि वी शुड बी एबल टू टॉक अबाउट एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट कम्स अंडर द सन. And what do you do? Like, there are, of course, stages in life where the decisions maybe don't match up. One partner wants one thing, another partner wants another thing. So there's no alignment. So this is something that probably one should solve early on when they're getting into a relationship, or how does one go about it? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द प्रॉब्लम इज. अगर कुछ ऐसा स्मॉल सा प्रॉब्लम है जो इट कैन बी सॉल्व विद डिफरेंट डिसीजन मेकिंग, कोई हार्म नहीं है. यू वांट टू हैव पिज्जा, आई वांट टू हैव बर्गर, व्हाट्स द हार्म? करो, हम भी काम, आप पिज्जा खाओ, मैं बर्गर खाता हूँ, मैन विल बोथ एंजॉय, राइट. लेकिन हाँ, अगर डिसीजन आ गई वो पर्टिकुलर लाइफ चॉइसेस के बारे में, व्हेन टू गेट मैरिड, हाउ मेनी किड्स वी आर गोइंग टू हैव, व्हाट इज योर करियर प्लान्स, हाउ मच मनी वी आर गोइंग टू सेव, दीज आर बिग थिंग्स, बिग डिसीजंस. इन पर्टिकुलर पॉइंट पे इट्स इंपॉर्टेंट टू कम टू अ मिड पॉइंट. Right. बिकॉज क्या होगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दूसरे इंसान को कि मैं ही सारे सेक्रीफाइसेस कर रहा हूँ और आप सब कुछ सफर कर रहे हो, Right. राइट. तो वो पर्टिकुलर पॉइंट मिड पॉइंट पे पहुंचना जरूरी है. अगेन मिड पॉइंट पे तभी आ सकेंगे जब हम अपने ईगो को चैलेंज करने के लिए रेडी रहेंगे. बिकॉज इफ आई से दैट नहीं, सबका अपना तरीका लाइफ जीने का. इफ आई टेल माई सेल्फ कि नहीं, अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो मेरा पर्सनैलिटी कि मैं 90,000 खर्च कर दूंगा. लाइफ जीने की एंजॉय करते हैं. समवन एल्स विल टेल यू कि 50,000 सेव करो, 50,000 खर्च करो. Right. दे आर ऑल्सो राइट फ्रॉम देयर एंड कि सेव भी करना चाहिए. अब ये दो डिफरेंसेस इन ओपिनियन है और दो डिफरेंसेस पर्सनालिटी में आ सकती है बात. इफ बोथ ऑफ देम कम टुगेदर, उनका दिमाग क्या कहेगा एक दूसरे के साथ कि नहीं नहीं, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो. बट रियलिटी में अपना अपना पर्सनालिटी है. Yeah. टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट एंड मे बी कम टू दैट मिड पॉइंट कि हम कैसे, हाउ टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. बिकॉज मे बी इफ आई एम स्पेंडिंग 90,000 रुपीज, समवेयर आई एम एक्चुअली नॉट मिसिंग आउट ऑन द सेविंग फ्रंट. And if I'm saving 50,000 rupees, then I'm also missing out on the enjoying front. Right. Then being able to also accept and embrace that particular thing and talk about that particular thing. Okay, what is the midpoint here? क्या कर सकते हैं बेटर? बिकॉज अगर मैं 90,000 खर्च कर रहा हूँ तो शायद मुझे सेविंग की जरूरत है थोड़ी. Right. और अगर मैं 50,000 सेव कर रहा हूँ तो शायद मुझे थोड़ा इंजॉय करने की जरूरत है जो मैं कर सकता हूँ. आई डेफिनेटली अफोर्ड टू इंजॉय दोज पर्टिकुलर थिंग्स, बट मैं दिमाग अलाउ नहीं कर पा रहा है. तो वो मिड पॉइंट पे बात करने से सॉल्व होता है. Again, very subjective for each partner. For someone, this might be justified. For another one, it not be. Absolutely, absolutely. So this is something that you think one should have a discussion in the early stages when they're getting into a relationship. या फिर इसको like people can navigate आई थिंक पीपल शुड नेविगेट थ्रू. हम हर कुछ नहीं बात कर सकते ना. हाँ. अब ये क्योंकि हम ये चीज़ अगर हम लेबल बना ले कि पहले ही सब कुछ बात करना चाहिए, वो एंडलेस हो जाएगा, कभी आप एंड पॉइंट पे पहुंचोगे ही नहीं. बिकॉज रियलिटी में लाइफ में इतनी सारी चीज़ें डिफरेंसेस है. हाँ. इफ यू मीट समवन देयर गोइंग टू बी काउंटलेस नंबर No ऑफ two डिफरेंसेस. person can be same. राइट. तो हजारों डिफरेंस, लाखों डिफरेंसेस आएंगे, कितनी बातें कर लोगे आप. बट हाँ, देयर शुड बी टॉक्स अबाउट सम थिंग्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. फॉर एग्जाम्पल, आर यू लुकिंग फॉर अ सीरियस रिलेशनशिप और कैजुअल रिलेशनशिप? Okay. अब ये पॉइंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके एक्सपेक्टेशंस, आपकी रिलेशनशिप्स, आपके बिहेवियर, आपके एक्शंस उस पर डिपेंडेंट होंगे. आई एम लुकिंग फॉर कैजुअल एंड लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस, देन नेचुरली वी आर गोइंग टू क्लैश एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू क्लैश. बट इफ वी बोथ आर क्लियर दैट वी बोथ आर लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस, देन यस वी कैन सेल अराउंड इट. बट हाँ, कब होना है कब नहीं होना है वो हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, वर्कआउट करेंगे. बट एटलीस्ट वो तो क्लैरिटी हो ना. Right. People these days, they have like big checklists. I think that's why probably they are getting married at quite a late age. Right. So what do you think like are the ideal, like things that one should look in a checklist? ऐसे क्या वो parameters हैं that you should look for in a partner maybe? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो चेक-इन्स की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला चीज़ होना चाहिए रिस्पेक्ट, जो हमने पहली बात करी. Right. बट दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है वो अंडरस्टैंडिंग एंड ट्राइंग टू मेक एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन एज वेल. दैट मीन्स आप एफर्ट कर रहे हो दूसरे पर्सन को समझने की. Okay. ये बहुत बड़ा पैरामीटर आ जाता है. बिकॉज काफ़ी बार हम रिलेशनशिप्स में देखते हैं कि दूसरा इंसान एफर्ट नहीं करना चाहता है आपको समझने की, कि दिस इज हु आई एम, दीज आर माई नीड्स एंड दिस इज इट. आई विल नॉट ट्राई टू मेक एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू एंड हु आर यू. बिकॉज द मोमेंट आई कम इन टू द रिलेशनशिप टेलिंग कि दिस इज हु आई एम एंड ये मेरी 5 नीड्स है, इनको फुलफिल करो, खुश रहो, देन आई एम काइंड ऑफ बिल्डिंग अ वॉल. मैंने बोल दिया मुझे क्या चाहिए, बट मैं समझ नहीं ना कि कोशिश नहीं करना चाहता हूँ कि वो इंसान क्या लेकर आ रहा है. बिकॉज जो मुझे 5 चीज़ें चाहिए, मे बी वो इंसान देने को रेडी नहीं है, केपेबल नहीं है, बट वो उससे भी अच्छे 10 चीज़ें मुझे देने को रेडी है. Right. लेकिन मेरा दिमाग इतना फिक्सेटेड उन 5 चीज़ों में दैट आई एम कैन नॉट बीइंग एबल टू ग्रो थ्रू दैट पर्टिकुलर थिंग. तो आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है बहुत कि being flexible enough to be able to understand what the other person is also wanting to bring on the table as well. So maybe those 10 things are not important to that partner and those 5 things are only important. Absolutely. So
maybe that won't make a difference to that partner. राइट हाँ हो सकता है हो सकता है नहीं उसमें समझना जरूरी है कि अगर आपके लिए 5 ही नॉन नेगोशिएबल्स है Right. ये चाहिए ही चाहिए हाँ फिर तो इट्स डन एंड डस्टेड फॉर यू ठीक है ये 5 चीज़ें मुझे चाहिए डिज आर नॉट मैचिंग अप तो एनी इज फाइन बट स्टिल आई फील कि कुछ चीज़ें होती है फॉर एग्जाम्पल वैल्यूज के टर्म्स पे दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड वर्क अराउंड इनिशियली फ्रंट पे ये सारी चीज़ें इनिशियली हमें पता होनी चाहिए स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट समवन विद अ गुड एजुकेशन बैकग्राउंड लेट्स से मेरा पर्सनल चॉइस है एंड there are people who can be much better than that in terms of lesser educational background but मेरा personal choice है वो चीज़ I should be okay with that particular thing but हाँ ये चीज़ मुझे clarity होनी चाहिए कि मैं जब मिलने जा रहा हूँ लोगों से तो ये दिमाग फिल्टर में लेके घूम रहा हूँ ऐसा ना हो कि मैं पहले जा रहा हूँ मिल रहा हूँ एंड देन बाद में फिल्टर ऑन कर रहा हूँ Right. तो आई एम वेस्टिंग माई टाइम देयर टाइम एज वेल एंड देन ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस एंड डिफरेंसेस कमिंग फ्रॉम दैट एज वेल What some people do is they just get into it, and maybe let's say 1 or 2 deal breakers are not getting checklist, right? So they just try to see if it's going to work out. So you are saying that you shouldn't go after it if it's not meeting your राइट minimum criteria that you're looking for. राइट एब्सोल्युटली आई थिंक 2-3 चीज़ें तो आप बना लो कि ये चीज़ें मुझे चाहिए ही चाहिए Right. एंड देन बाकी चीज़ों में फ्लेक्सिबल रहो राइट दैट मीन्स अगर मुझे लुक्स बहुत मैटर करते हैं फाइन आई मीन गुड फॉर यू आई मीन वट एवर योर पर्सनल चॉइसेस बट दैट इज़ माई डील ब्रेकर काइंड ऑफ थिंग Right. या मुझे एजुकेशन बैकग्राउंड चाहिए मुझे इस तरीके का स्टेट चाहिए इस तरीके की सिटी चाहिए माई पर्सनल चॉइस वट एवर दैट इज लेकिन हाँ बाकी चीज़ें जो मेरी नॉन निगोशियबल्स है उनके लिए आई शुड बी फ्लेक्सिबल राइट कि लेट्स से हाइट मेरे दिमाग में हाइट इतनी होनी चाहिए बट आई एम फ्लेक्सिबल अबाउट दैट कि नहीं ऐसा कुछ नहीं कि हाइट से इतना कुछ हो जाएगा आई एम फ्लेक्सिबल अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग तो बाकी चीज़ें मुझे अच्छी मिलेगी तो आई कैन बी फ्लेक्सिबल अराउंड दैट पर्टिकुलर थिंग तो सम थिंग्स शुड बी फिक्स्ड एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स शुड बी फ्लेक्सिबल Makes sense. So these days in the modern dating world, like a lot of, there's a buzz around like platonic relationship. राइट So what do you think about that? Like, is it fair, or if both the parties are involved, they have clear intention that this is only what they're looking for. So how does it affect one? See, if they're very clear about what they want, both of them, Okay. then great, perfect, nothing better than that. Okay. But it's very hard to be very clear about that particular thing. Right. What our brain does is कि our brain hates uncertainty. हमारे दिमाग को lack of clarity और uncertainty बिल्कुल नहीं पसंद है. And this is exactly what platonic relationships bring into the table. Platonic relationship में क्या होता है कि okay feelings नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन कुछ है. Right. Right? It's more than friends, but it's not friends. It's not a relationship either. So what exactly is happening to your brain? You're confused. Your brain is confused. And your brain is confused, it will be uncertain. It will be not so clear. And your brain, when your brain is uncertain and not so clear, it will automatically lead to anxiety. And automatically, because of that relationship, you will constantly keep on falling into the track of anxiety as well. तो पहला चीज समझना जरूरी है कि इफ यू आर एबल टू बी क्लियर कि हम दोनों बिल्कुल सॉर्टेड है इस चीज से जो कि आई एम सेइंग आइडियलिस्टिकली नहीं पॉसिबल है रियलिस्टिकली नहीं पॉसिबल है अच्छा. तो ठीक है वरना रियलिस्टिक लेवल पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली कैरी दैट पर्टिकुलर थिंग अहेड इट काइंड ऑफ स्क्रूज योर ब्रेन आउट बिकॉज आपका दिमाग को चाहिए आंसर आप उसको आंसर नहीं दे पा रहे हो कॉन्स्टेंटली फाइट्स इट विल कीप ऑन फाइटिंग बैटल्स इंटरनली कि हो क्या रहा है And these days, like people are like who are in platonic relationship, eventually like they end up, quitting, or like one of the partners maybe cheats or whatever happens. yeah. I mean, of course, they already had terms. So how does one overcome, when they're in platonic relationships or maybe in a relationship, like not a platonic one, how do they like recover from it? ब्रेकअप Right. आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस चीज़ में समझना ज़रूरी है कि अगर हमारी दिमाग में क्लैरिटी थी रिलेशनशिप को लेकर कि व्हाट एग्जैक्टली द रिलेशनशिप वाज हेडिंग टुवर्ड्स तो थिंग्स बिकम अ बिट बेटर बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट ब्रेकअप्स ब्रिंग विथ इट इज दैट इट मेक्स अस क्वेश्चन आवरसेल्व्स सो व्हेन यू गो थ्रू अ ब्रेकअप व्हाट रियली हैपेंस हियर इज दैट द मोमेंट यू गो थ्रू अ ब्रेकअप यू स्टार्ट टेकिंग इट ऑल पर्सनली You start finding out, मुझ में क्या कमी थी? एग्जैक्टली राइट What did I not do? How could I have done it differently? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली होता क्या ना कि आप इंसान हर इंसान बीट यू बीट मी और बीट एनीवन इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड हम सब में कमियां हैं Right. और अगर आप कमी निकालने बैठोगे आप हज़ारों कमियां निकाल लोगे और यही ब्रेकअप करता है सो व्हेन यू गो थ्रू अ ब्रेकअप यू आर ऑलरेडी इन अ लो वल्नरेबल स्टेज एंड देन व्हाट यू आर डूइंग कि शायद कुछ कमी के कारण उसने मुझे छोड़ दिया Right. फिर हम दिमाग ने कहा कि अच्छा कमी क्या थी फिर लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज द कमी एंड कमी ढूंढने बैठेंगे तो 1000 कमी मिल जाएगी Right. तो बेसिकली हमने दिमाग को एक ऐसा पर्पस दे दिया जिसके आंसर्स मिलने ही मिलने हैं तो हम ऐसे मीनिंग ढूंढने लग जाएंगे ऐसे रीजंस ढूंढने लग जाएंगे जिसका कोई रिलेशन नहीं था ब्रेकअप से बट बिकॉज देवर कमियाँ आई विल स्टार्ट मेकिंग सेंस कि हाँ शायद इसका आंसर छोड़ दिया मुझे शायद मेरी हाइट कम थी इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया बट उससे फर्क भी नहीं पड़ता था उस चीज़ का आपने उसको खुद को पकड़ा दिया बिकॉज दैट वॉज योर इनसिक्योरिटी
राइट. सो ये पर्टिकुलर पॉइंट है कि when you go through a breakup, the very first thing that happens, you start questioning yourself. Right. Is because you start attaching your worth through that particular person. Because you're trying to maybe find the closure. Sometimes people don't get the closure, like Yes. what was the reason. Right. So that's why they keep, searching for it, and sometimes they never find it. एब्सोल्युटली. ये क्लोजर वाला पॉइंट भी ना बहुत ही ट्रिकी हो जाता है. अच्छा. आइडियली यू विल नेवर गेट क्लोजर. Okay. हम जो क्लोजर क्या बोलते हैं, क्लोजर का मतलब क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक सेट आंसर सेट है. हाँ. दिस इज व्हाट आई वांट टू हियर फ्रॉम यू आफ्टर द ब्रेकअप. Right. तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी आंसर सेट है. नो मैटर व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग टू से, वो तो कभी आंसर मिलने वाला है नहीं मुझे, बिकॉज वो दिमाग तो वहाँ नहीं सेट है मेरे दिमाग में ना. Right. कि मुझे ये सुनना है, तुम तो कभी वो बोलने वाले नहीं हो. Right. So automatically, no matter what you say, I'm not going to get the closure that I want to see. तो प्रॉब्लम ये होता है कि मैंने दिमाग में जब सेट कर लिया कि मुझे क्लोजर चाहिए, और आप आ रहे हो अपने साइड से, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आपने सारी गलती मान ली अपनी. आपको समझ में आ गया कि आई वॉज अ ग्रेट पर्सन, आई वॉज अ वंडरफुल पर्सन, बट फाइनली यू हैड टू डू समथिंग अबाउट इट. And then you're being very apologetic and you're being very sorry and you're very sad about this particular thing, and then you're just putting it all on yourself and not on me. Right. बट रियलिटी में द अदर पर्सन आल्सो गोइंग टू द सेम थिंग. उसके दिमाग में भी वही हीरो है ना. उसके दिमाग में यही चल रहा है कि आई वॉज ग्रेट, आई डिड समथिंग राइट एंड ही वॉज अ बैड पर्सन. सो वेन यू फाइनली टॉक टू ईच अदर कि अच्छा चलो लेट्स हैव सम क्लोजर, लेट्स टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, दे आर डिफेंडिंग देमसेल्व्स, यू आर डिफेंडिंग योरसेल्फ. कभी कैसे क्लोजर मिलेगा? क्लोजर तब मिलेगा ना कि जब आपकी एक यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में बात कर रहे हो, द अर्थ इज राउंड. Right. दैट इज अ क्लोजर, बिकॉज सबके लिए फैक्ट सेम है. लेकिन आप जो क्लोजर की बात करो तो ओपिनियन है. कौन गलत था इस रिलेशनशिप में? मैं तो बोलूंगा मैं गलत नहीं था, आप बोलोगे आप गलत नहीं थे. Right. So there's no end. देयर इज to नो it. एंड टू दिस पर्टिकुलर थिंग. और भागते रहते हैं. और ये प्रॉब्लम क्या है ना कि इस क्लोजर के चक्कर में आप देखोगे कितने रिलेशनशिप्स खींचते रहते हैं सालों सालों खींचते रहते हैं, बिकॉज वी आर स्केर्ड ऑफ दैट क्लोजर थिंग. Right. I want to make sure कि दूसरा person understands कि what I went through. I want to make sure that the other person understands what I went through. I want to make sure that the other person understands and accepts my worth as well. कि मेरी ये वैल्यू थी, तुमने उस वैल्यू को गिराया है. Right. लेकिन वो कभी नहीं होता. हर इंसान अपने दिमाग में एक हीरो ही है. तो आपको जो क्लोजर चाहिए वो कभी नहीं मिलने वाला आइडियली. तो अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग सम बिट ऑफ योर इमोशन, सम बिट ऑफ द ट्रॉमा, सम बिट ऑफ द फीलिंग्स दैट यू हैव बाय योरसेल्फ बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. That is quite much missing these days. So you eventually need to let go of it and move on with your life. लेट गो भी नहीं करना है, I would say process, I would say process with a better word. आप समझो कि आप क्या चीज़ों का क्लोजर ढूंढ रहे हो, बिकॉज नेचुरली जब आपको कुछ बुरी चीज़ें होती है तो आप हिट करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को, आपके सेल्फ वर्थ को. Right. बट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड दैट, क्वेश्चन इट एंड रैशनलाइज इट एज वेल, दैट मे बी रीजंस थे ब्रेकअप होने का, बट ये रीजंस नहीं थे जो मैं सोच के बैठा हूँ कि मेरी हाइट कम थी, मेरे एकेडमिक एजुकेशन क्वालिफिकेशंस कम थे. Right. ये मुझे लग रहा है बिकॉज ये मेरी इनसिक्योरिटीज थी. मे बी इट वाज समथिंग एल्स, मे बी हमारे बीच में कॉमन कुछ नहीं था इसलिए प्रॉब्लम हो गए. एंड बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड एंड गेट टू द क्लियर आंसर वो तभी आ पाएगा जब हम एक्चुअली रिफ्लेक्ट करेंगे, प्रोसेस करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे. अवेयरनेस के थ्रू ही आएगा. बट या जस्ट मेकिंग श्योर किसी भी चीज़ रीजन पे डाल दिया कि हाँ हाइट कम थी मेरी इसलिए प्रॉब्लम हो गया, तो बस मेरी इनसिक्योरिटी और मेरे बिलीफ सिस्टम है दैट इज कॉजिंग द ट्रबल. And sometimes what happens is, like, when people are going through this healing process, maybe just to like heal from this, or just to get through this, like they just get into rebound relationships. So how does that affect them? Is it, of course I think it's not good to do. What should one do in that situation, or how does this rebound relationship affect their mental health? It does. It purely does. I mean, when you get into a rebound relationship, आपका expectation क्या है कि I went through something bad and I'm hurt and disappointed. I feel very unworthy of myself. I want to feel worthy. I want to feel special. I want to feel that I am actually good enough. Right. And वो कैसे feel होगा? Through something else, through someone else, right? और वो someone else rebound के through दिखेगा ना that okay, finally someone else comes into my life and उसने मुझे feel करा दिया कि that I'm actually worthy enough. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो जो वर्दीनेस वाली फीलिंग थी 2 सेकंड, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे तक लास्ट करेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी. एंड देन यू अगेन गो बैक टू द सेम लूप. बट नाउ योर ब्रेन इज एडिक्टेड टू फाइंडिंग दैट आंसर अगेन और दैट वर्थ अगेन. आपने अनवर्दी फील किया थ्रू वन पर्टिकुलर रिलेशनशिप एंड आपने वर्थ सीख के एक रिबाउंड के थ्रू, तो आपका दिमाग क्या कहेगा? और करते उस चीज़ को बिकॉज मज़ा आ रहा है. इट्स लाइक ड्रग्स. आप जब बहुत लो फील करते हो, आपने ड्रग ले लिया, आपको बहुत मज़ा आया, किक मिल गया, कितने देर लास्ट करेगा? अगले दिन उठोगे फिर से आप वही स्ट्रेस के साथ उठ रहे हो ना. आपको दिमाग क्या कहेगा? मज़ा आया था कल रात, सारा स्ट्रेस भूल गए थे हम, बहुत रिलैक्सिंग हो गया था, लेट्स डू दैट अगेन. आप फिर से करना चाहोगे, बट इवेंचुअली क्या होगा कि बॉडी को हर्ट करना चालू करेगा. सेम थिंग गोस फॉर अबाउट रिलेशनशिप्स एज वेल. इट विल स्टार्ट हर्टिंग योर प्रॉस्पेक्ट ऑफ आइडियली फाइंडिंग अ ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल रिलेशनशिप. बिकॉज आपने अपने दिमाग में सिर्फ आइडियल पिक्चर को पेंट कर दिया है
कि ये आइडियल पिक्चर, बिकॉज रिबाउंड में क्या हो रहा है, आप एक किक ले रहे हो रिलेशनशिप से, आप रिलेशनशिप को फील नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज रिलेशनशिप इज नॉट जस्ट अबाउट द किक, relationship not just about the butterflies in the stomach feelings. A relationship is actually about very very difficult moments, very very difficult conversations and very very difficult situations which you navigate through together. हमने जब कह दिया कि हमें रिबाउंड करना है, तो हमने खुद को ये बोल दिया कि वो जो किक वाले मोमेंट से, वो स्पॉन्टेनियस एक्साइटिंग मोमेंट से, उसमें मजा ढूंढ लो और बाकी चीजें फालतू है. Right, and then it's a constant cycle of एंड देन वी गेट एडिक्टेड टू दोस पर्टिकुलर थिंग्स, और वो भागते रहोगे इस चीज के पीछे. दैट्स व्हाई यू सी पीपल, आप देखोगे आज के डेट पे some people keep on chasing one person another, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, वो भाग रहे एक दूसरे इंसान के पीछे, बट दे आर नॉट सेटल्ड. ऐसा भी क्या होगा, मतलब इतना आपने चेज कर लिया इतने लोगों के साथ, यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, तो अब तक तो कुछ ना आंसर तो मिल जाना चाहिए. ये तो बेसिक रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप इतना सारा, इफ यू रोल अ डाइस 6 times यू आर गोइंग टू गेट 6 1 time, राइट. आपने इतने सारी चीजें कर ली एक्सप्लोर, कभी तो आंसर मिलना चाहिए था, आपको क्यों नहीं मिल रहा आंसर? बिकॉज आप आंसर ढूंढ ही नहीं रहे हो, आप किक ढूंढ रहे हो. you're only looking for those highs. यस, यू आर लुकिंग फॉर हाइज. Right, तो कैसे एक बंदा अपना maybe how should they build their confidence when they are down in their life, when they are going through these breakups or sad moments in life, तो कैसे they should go through this navigate through this journey? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो पॉइंट आ रहा है, ये जो लो से हाई का जो फेज आ रहा है, वो एक दिन का प्रोसेस नहीं हो सकता कभी भी. Right. तो हैविंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस वेरी इंपॉर्टेंट. इंसान को लो से हाई एक ही चीज़ पहुंचा सकता है, वो द किक जो हमने बात करी, और किक इज ऑल्फन नॉट सस्टेनेबल. Right. किक कभी सस्टेनेबल नहीं होता है. सस्टेनेबिलिटी टेक्स टाइम. आप बहुत वेट गेन कर चुके हो, आप 100 kgs प्लस हो चुके हो, अब आप कहोगे कि मुझे कैसी मैजिकल पिल दे दो जिससे मैं 50 किलो वेट लूज कर लूँ आज, तो वो मैजिकल पिल आपको मे भी वेट लूज करा दे, बट साथ साथ आपका किडनी भी डैमेज कर दे रहा. राइट. हमें क्या चाहिए? सस्टेनेबिलिटी. आई वॉन्ट टू गो टू द जिम एवरी डे. Right. मैं 6 महीने वर्कआउट करूंगा और फिर मैं 20 किलो वेट लूज करूंगा. दैट इज सस्टेनेबल गोल. सेम थिंग गोस हियर कि हम लो फील कर रहे हैं, यहाँ तक आने में समय लगेगा हमें वापस, बट देन आई मेक स्मॉल एफर्ट्स एवरी डे टू गो फ्रॉम हेयर टू हेयर टू हेयर टू हेयर टू हेयर. वो एफर्ट ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, और उस चीज़ों को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, एंड धीरे धीरे खुद को समझा पाना कि आई एम एबल टू वर्क अराउंड दिस पर्टिकुलर एरिया. काफ़ी बार इतना लो पहुँच जाते हैं हम जहाँ पे खुद का मोटिवेशन भी जीरो हो जाता है. उस मोमेंट पर अगर पहुँच गए, देन टेक प्रोफेशनल हेल्प, बिकॉज काफ़ी बार इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट योर सेल्फ फ्रॉम हेयर टू हेयर. आप खुद को यहाँ से यहाँ ले आओगे ज़रूर, बट उस प्रोसेस में बहुत टाइम और एनर्जी आप वेस्ट कर चुके होगे. Or you'll spend so much time. सो मच टाइम. आपको मतलब जो मेन समय आप खुद को ग्रो करने में बिताना चाहोगे, वो आपने खुद को बस निकालने में निकाला. Right. तो आपका अच्छा खासा समय आपने वेस्ट कर दिया. उससे बेटर आप टेक प्रोफेशनल हेल्प, अंडरस्टैंड एंड वर्क ऑन दोज एरियाज. वो प्रोसेस आपको ऑप्टिमाइज हो जाएगा. So people who are going through this, they should take life coaching. Any sort of professional help. They should take therapy, they should take coaching, they should take anything. I mean, और काफ़ी बार वो प्रोसेस खुद के थ्रू भी हो सकता है. You read books, you understand things, you go through podcasts, you work, read a lot of, understand a lot of things from yourself and from your side, do a lot of journaling. उससे ही possible है. So take the time to heal yourself and don't rush into Right. things. Take your time. And when you're back to the normal stage, then you maybe start looking for a partner again Yes, when yes. you're finally ready. Right. बट हाँ, यहाँ भी एक ट्रिकी पार्टी हो जाता है कि वो नॉर्मल कब पहुँचेंगे वो हमें नहीं पता होता है. Right, because there are no specific time. There's no specific Everybody time. has their own. Some people take a year to heal, some people can heal in 6 months. Yes. और ये पॉइंट होता है ना काफ़ी बार कि जब वो बोल देते हैं ना, जब हम एक ब्रेकअप के थ्रू निकल रहे हैं और हमने काफ़ी समय ले लिया अपना, 1 साल ले लिया आप, 1 साल के बाद हम वापस आ रहे हैं, ओके नो इट्स आई थिंक टाइम टू डेट अगेन. दैट इज़ व्हाट पीपल आर टेलिंग मी. मुझे डर लग रहा है, मेरे दिमाग में बात बैठी हुई है कि यार फिर से मुझे हर्ट होगा. आई डोंट वांट टू गो इनटू द सेम थिंग अगेन. But I think I want to be in a relationship. I have some needs of the relationship. My friends are telling me that I need a relationship. अब हो क्या रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, आई वॉन्ट अ रिलेशनशिप बट आई एम टू स्केयर टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप इवन दो आई हील्ड फ्रॉम माई प्रीवियस रिलेशनशिप. व्हाट टू डू नाउ? उस पर्टिकुलर केस में समझ पाना कि आपकी एंग्जाइटी बहुत नेचुरल है, बिकॉज देन यू अगेन स्टेपिंग ऑन टू समथिंग विच इज़ वेरी अनसर्टेन फॉर यू, विच डज नॉट हैव एनी आंसर फॉर यू. So the moment I step onto something which is very uncertain, very unclear and very confusing, you're naturally to feel anxious. Right. तो do not make a decision just based on the anxiety कि मुझे डर लग रहा है इसलिए मैं नहीं करूँगा वो चीज़. Be anxious, understand your anxiety, be comfortable with that anxiety and still take that action. Right. कि ठीक है, अब मैं इस एंग्जाइटी को हैंडल करना सीख चुका हूँ, मैनेज करना सीख चुका हूँ, लेकिन इट्स ऑल्सो टाइम टू टेक एन एक्शन. तो मैं एक्शन भी लूंगा एंग्शियस फील करते करते, लेकिन बाहर निकलूंगा एट इस चीज़ के थ्रू. I also want to touch upon this topic of long distance relationships. So how does one like make long distance relationships work? Because there's a lot of lack of communication, maybe Yeah. like
lack of intimacy, which is बिल्कुल. very important. Everybody needs it, right? So how can one make long distance relationships work? I think trust and communication and understanding each other and respect again जो basic चीज़ें हमने बात करी, but you would need that much more than in a short distance relationship because जब distance है तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है, बहुत सारे issues भी चल रहे होते हैं, बहुत सारे gaps है जो आप नहीं fulfill कर पा रहे हो, तो you need to communicate very openly. ऐसा ना हो कि एक gap, you are talking and then you are not talking for 2 days and then you are talking again, you are not talking for 2 days again. तो इस चक्कर में 2 दिनों में तो दूसरा इंसान तो कहानी बना चुका होगा अपने दिमाग में. Right. And it will lead to a lot of issues. तो communication has to be very proper, very very proper. Okay. अगर communication होगा तो trust automatically build हो जाएगा क्योंकि I know the person is caring for me, understands my needs, understand my wants, and then हम उसको workout करने के लिए workout manage कर रहे हैं. तो वो एक बहुत important fragment आ जाता है because if you're able to work through that particular thing that I understand my partner's sentiments and emotions and I know कि मेरी communication कितनी ज़रूरी है यहाँ पर, तो आई वॉन्ट टू मेक इट वर्क. वरना काफ़ी बार ये होता है कि मेरी बाकी प्रायोरिटीज इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, वो तो चलो शील वेट ना. Some people actually have like different, communication styles. Like some people prefer in person, calls, texts. So I think it's very important for one partner to understand that यस मिड पॉइंट पे पहुंचना you need to जरूरी है. communicate. राइट. हाँ, बट वो कम्युनिकेशन ऐसा एक आप टाइम बना लो, वर्कआउट कर लो कि वो कहानी बनाने का मौका ना मिले दिमाग को. Right. इट्स एज सिंपल एज दैट. इफ योर ब्रेन गेट्स द टाइम टू स्टार्ट बिल्डिंग स्टोरीज इन इट्स हेड, Right. देन असली रियलिटी से वो बहुत दूर हट जाएगा. Right. रियलिटी में रहने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? बी इन टच विथ रियलिटी ऑलवेज. एंड हाउ डू यू बी इन रियलिटी? इफ यू कॉन्स्टेंटली इन टच विथ ईच अदर. अगर आप टच में नहीं रह रहे हो, बातें नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो चीज़ों के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू समथिंग वेरी हॉरिबल टुडे एंड आई वांटेड टू टॉक टू माई पार्टनर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग बट शी इज़ नॉट अवेलेबल. व्हाट विल हैपन देन? मेरे दिमाग में क्या कहानी बनेगी? मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है. शी डज नॉट नो दैट राइट नाउ. उसे नहीं पता क्या हुआ मेरे साथ, बट मेरे दिमाग में कहानी बननी चालू होगी, मेरे साथ इतना बुरा हुआ एंड नो वन इज हेयर फॉर मी. And this will somehow start building resentment against her for me. And then automatically मेरे दिमाग में frustration, गुस्सा, सब कुछ आना चालू हो जाएगा. But वही अगर हमें पता है कि I can talk to her at the end of the day, तो I'll be sorted ना eventually. तो वो particular थोड़ा बहुत communication channel होना चाहिए open कि हम बात कर सके, and flexibility as well कि एक channel बना हुआ discussion का. What happens is like in long distance relationships क्या होता है कि needs नहीं पूरी हो पाती partners की. So sometimes one of the partners like they end up cheating, getting intimated with another person. तो उस केस में like one should, what should one do about it? तो when we talk about the relationship and cheating in that particular front, I think सबसे पहली चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर वो चीटिंग तक बात पहुंच चुकी थी, that means एक लेवल ऑफ ट्रस्ट ब्रीच हो चुका था. Right. बिकॉज अगर उस पॉइंट तक बात पहुंच गई है, मतलब एक गैप था आपके नीड्स के लेकर या आपके अंडरस्टैंडिंग को लेकर जो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए. दैट मीन्स ऑलरेडी थोड़ा बहुत गैप तो स्टार्ट हो चुका था आपके रिलेशनशिप में ऑलरेडी, एंड दैट इज हाउ यू एंडेड अप एक्टिंग इस लेवल पे इम्पल्सिवली. अगर एक्चुअली आप समझ पाते ट्रस्ट को, अंडरस्टैंडिंग को, रिस्पेक्ट को, तो शायद वो एक्शन नहीं लेते आप आइडियली. Right. राइट. बट अगर आपने एक्चुअली लिया तो ऑटोमेटिकली समवेयर एक दिमाग में बात थी ना कि मे बी माई नीड्स आर मच मोर इम्पॉर्टेंट द फीलिंग्स ऑफ माई पार्टनर. So let's say if you forgive your partner at that stage. हाँ. So उसके बाद एक ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें? Because once the paper is crushed, of course it's not easy to have it the same again. Right. Absolutely. I think Is it worth it to start building the trust again? Is it possible? अगर possible है तो वो कैसे करना चाहिए? right. I think it depends again on the person to person. Okay. अगर आपको लगता है कि इट्स अ वन टाइम थिंग एंड इट वाज प्योरली एन एक्सीडेंट काइंड ऑफ थिंग एंड नहीं होगा, आपको इतना ट्रस्ट बिल्ड हो गया, आपने समय लेके इतना ट्रस्ट दिया उस पर्टिकुलर पर्सन को, then yes, then maybe it can be given a shot. But most of the cases में it's very difficult to actually change. Ideally, if you think about it, Right. एक बार अगर गलती हुई है उस तरीके की तो बहुत मुश्किल है वापस रिपीट होने की उस चीज़ का, बिकॉज ऑटोमेटिकली एक अंडरस्टैंडिंग दिख जाती है ना, फॉर मी माई नीड्स आर मैटरिंग मोर दैन द फीलिंग ऑफ यू, वॉट यू एग्जैक्टली आर फीलिंग. तो ऑटोमेटिकली वो गैप एक बार ब्रिज होना चालू हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली टू लीड टू मोर इश्यूज. तो जब तक आप बिल्कुल ट्रस्ट ना कर सको उस इंसान को, इट्स बेटर टू नॉट वर्क ऑन दोज एरियाज. So basically what happens is like in general relationship also, like some people just keep on making mistakes and maybe that leads to like infidelity or something Yeah. bad. So how does one decide, for example, ki forgiveness, like should you forgive that partner again? Right. See, again, forgiveness only works when you're no longer living under the shades of abuse. Okay. अगर आपके साथ अभी भी वो चीज़ें बिहेवियर हो रहे हैं और आप उस चीज़ को फिर फॉरगिव करना चाह रहे हो तो बहुत मुश्किल होगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरे साथ इमोशनल या फिजिकल अब्यूज़ किया एंड देन मुझे वो चीज़ हर्ट करी, राइट. लेकिन वो 2 साल पहले हुआ था.
एंड उसके बाद आपका बिहेवियर बहुत चेंज हो चुका है, देन स्टिल आई कैन थिंक अबाउट फॉर गिविंग यू फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. लेकिन व्हाट इफ ये चीज़ आज भी रिपीट हो रहा है, आज भी वो 2-2 महीने में हो रहा है, तो मैं 2 साल पहले जो मेरे साथ हुआ था उसको मैं फॉरगिव करके भी क्या कर लूंगा जब वो फिर से Right. कंटिन्यू हो रहा है. Right. सो फॉरगिवनेस ओनली वर्क्स जब वो अब्यूज खत्म हो चुका है, दैट इज एंडेड. तब इट इज मे बी वर्थ अ शॉट टू बी एबल टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द क्लचेज ऑफ दैट पर्टिकुलर मिजरी. वरना क्या होता है कि अगर आप नहीं उसको वर्कआउट करोगे तो इट विल ऑब्वियसली कीप यू इन अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट एंड स्ट्रेस एज वेल. तो फॉरगिवनेस इज इंपॉर्टेंट एट टाइम्स, बट इट इज नॉट अ नेसेसिटी, बिकॉज काफी बार if the problem or if the abuse keeps on reoccurring at any particular situation or stances, it will always lead to more issues and lead to more struggles as well. So sometimes what happens is that people are, not feeling that spark, or they just feel that they have fallen out of love. So how should one decide ki have they fallen out of love, or whether, it's not the spark that they initially had? I think spark is a very overrated thing in relationships. Okay. Spark अच्छी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, मज़ा आता है, हर इंसान को मज़ा आता है स्पार्क के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, किक के साथ. बट दैट इज नॉट द ओनली इंडिकेटर फॉर रिलेशनशिप टू एक्चुअली वर्क. स्पार्क है, अच्छी बात है, होना चाहिए, नहीं हुआ तो आप इंसान, आपके लिए प्रॉब्लम है. लेकिन स्पार्क से हम सबको जज नहीं कर सकते. तो स्पार्क अगर मिस हो गया है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट हाँ, अगर आप दोनों के बीच वो एफर्ट करने की टेंडेंसी, अंडरस्टैंड करने की टेंडेंसी और रिस्पेक्ट और बाकी चीजें खत्म हो गई, देन इट इज अ प्रॉब्लम फॉर श्योर. कि आपके पास वो बचा ही नहीं पेशेंस टू बी एबल टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन. आप रिस्पेक्ट करना ही नहीं चाह रहे दूसरे इंसान को. आपके अंदर इतना रिजेंटमेंट भर चुका है कि आप बिल्कुल, देयर इज नो स्पेस फॉर यू एट ऑल. दैट इज अ प्रॉब्लम. बिकॉज प्रॉब्लम क्या होता है कि हम काफी वो रिलेशनशिप को स्पार्क से जज कर रहे होते हैं. जब स्पार्क खत्म होता है हमें लगता है रिलेशनशिप खत्म हो गया. नो, you have to get bored in relationships. It's very normal to get bored in relationship, but how do you deal with that boredom is what is more important. So don't judge a relationship by the boredom. But हाँ, अगर spark खत्म हो गए, वो सारी चीजें आ गई, then you have to handle that particular thing. But yeah, बात आई अगर मान लो कि वो रिस्पेक्ट खत्म हो गया, रिजेंटमेंट बढ़ गया, वो टेंशन खत्म हो गया, वो सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक चीजें में आने चालू हो गई है, देन पहले तो समझना कि वो चीजें कब स्टार्ट हुई थी. बिकॉज एक दिन में वो खत्म होता नहीं है. इट टेक्स टाइम टू एक्चुअली गेट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट. राइट. कि बहुत दिनों का लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बहुत दिनों का फ्रस्ट्रेशन, बहुत दिनों का स्ट्रेस, बहुत दिनों का मिसकम्युनिकेशन लीड्स टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि हम रिस्पेक्ट ही नहीं बचा हम दूसरे के, एक दूसरे के लिए. तो उस पॉइंट को समझना कहाँ से स्टार्ट हुआ था. एंड देन मे बी टेकिंग सम प्रोफेशनल हेल्प, अगेन कपल काउंसलिंग और समथिंग लाइक दैट, ताकि आप समझ सको उन चीज़ों को कि कैन वी एक्चुअली ब्रेक दैट गैप नाउ, और ये बहुत आगे निकल चुकी है. बट वो पता कैसे लगता है कि दिस इज द टाइम आई नीड प्रोफेशनल हेल्प? बिकॉज सम पीपल मे जस्ट see YouTube videos or search information on the internet. So how does that one realize that okay, I need professional help now? तो वो एक कैसा पॉइंट है जब आपको पता है कि मुझे रिलेशनशिप में रहना है, लेकिन मैं रह नहीं पा रहा हूँ. अच्छा. दैट मीन्स लेट्स से आई एम मैरिड टू समवन एंड मेरा दिमाग, मुझे पता है कि मुझे मैरिज में रहना है, आई लाइक द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, राइट, एंड आई नीड टू बी इन दिस पर्टिकुलर मैरिज फॉर वट एवर पर्पज दैट इज. लेकिन आई डो नॉट फील लाइक आई एम मैरिड बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस और रिजेंटमेंट और वट एवर दैट इज. सो मुझे रहना है, मुझे करना है, मुझे मेरे पास्ट मेमोरीज अच्छे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम रह नहीं पा रहे इस पर्टिकुलर तरीके से, इन पर्टिकुलर चीज़ों पे. सो उस पर्टिकुलर गैप के लिए कि ओके, आई वांट टू बी इन दिस पर्टिकुलर थिंग, आई वांट टू मेक दिस वर्क, बट आई एम नॉट एबल टू मेक इट वर्क. दैट इज द बेस्ट टाइम टू डू दैट. ओके. और जितनी जल्दी आप एक्चुअली उसको हेल्प सीख करते हो, उतना बेटर होता है चांसेस रिजॉल्व करने का. जितना लेट होता है वहाँ पर प्रोफेशनल हेल्प भी काफ़ी बार इट डज नॉट कम हैंडी, बिकॉज आप बहुत आगे निकल चुके होते हैं. One last question, Shivam, that I want to touch upon before I let you go is, what are the implications of, let's say, sharing your personal life or your relationship, on social media? आई थिंक नज़र तो नहीं लगती है. ये नज़र वाली चीज़ बहुत ओवररेटेड है. आई मीन देयर इज नथिंग लाइक नज़र और एनीथिंग लाइक दैट. नज़र लग जाएगी आप पोस्ट करोगे तो. बट आई स्टिल वुड फील कि पोस्ट करना आपके अपने पर्सनल चॉइस के लिए होना चाहिए, रादर देन टू शो पीपल दैट यू आर हैप्पी इन द रिलेशनशिप. ओके. इफ यू वांट टू शो योरसेल्फ और यू वांट टू पोस्ट इट आउट देयर, बिकॉज ये सोशल वर्ल्ड है, तो आपको जरूरत भी होती है काफ़ी बार दिखाने की चीज़ों को. ठीक है, इट्स फाइन, गुड एंड इनफ. बट इफ इट बिकम्स अ हैबिट, कंपल्सिव हैबिट, जहाँ पे आप उस पर डिपेंडेंट हो टू फील हैप्पी इन द रिलेशनशिप, दैट मीन्स आई ओनली फील हैप्पी इन द रिलेशनशिप व्हेन आई एम एबल टू शो अदर पीपल ऑन द इंटरनेट दैट आई एम हैप्पी इन द रिलेशनशिप, देन दैट इज वेयर अ प्रॉब्लम स्टार्ट्स. तो इट्स ओके टू पोस्ट वंस इन अ वाइल, बट अगर आप उसको अपने हैबिट बना लिए कि उसी से खुशी मेरी मिल रही है, देन आपको एक्चुअली रिलेशनशिप पे काम करने की जरूरत है फिर तो. Thank you so much, Shivam. It has been a pleasure having you on the show. I'm sure our audience must have got a lot of amazing insights. These are, I think, a lot of your questions that you've been looking on the internet, I'm sure they must have been answered today. So thank you so much, Shivam, for coming here. Thank you so much for having me. It was a pleasure hosting you. Same here. Thank you.